شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر چند مہمان آئے۔ وہ دیکھنے میں نہایت نورانی پاکیزہ لگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، مگر مہمان کھانے سے دور رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے۔ ایک مہمان نے مسکرا کر کہا، اے ابراہیم، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک سرکش قوم پر اللہ کا عذاب لانے آئے ہیں، وہ قوم جس نے ہر حد پار کر دی ہے، وہ قوم جہاں تمہارا بھتیجا لوط علیہ السلام رہتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، میرا بھتیجا، وہ تو نیک بندہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے اطمینان دیا، فکر نہ کریں، حضرت لوط اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بچ جائیں گے، عذاب صرف نافرمان، بے حق اور ظالم لوگوں پر آئے گا۔ فرشتے روانہ ہوئے ایک ہولناک مشن پر۔ ان کا مقصد تھا سرکش قوم کے غرور اور ظلم کو مٹانا۔ سدوم کی سرحد کی طرف بڑھے، راستے میں ایک لمحے کے لیے دریا کے کنارے رکے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی پانی بھر رہی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ لڑکی نے انہیں پہلی بار دیکھا اور ان کے پاکیزہ نورانی چہرے پر حیرت ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں روشنی، چہرے پر وقار اور سکون تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی، پھر ہمت کر کے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ ایک فرشتے نے مسکرا کر کہا، ہم مسافر ہیں، لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں اور کچھ دیر قیام کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ بستی کس حد تک فساد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ شہر میں کھلے عام داخل ہو گئے تو گناہگار ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس لے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک نہایت اہم ذمہ داری دی۔ وہ ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو اخلاقی پستی کی انتہا کو چھو چکی تھی، جو ہر قسم کے ظلم اور بے حیائی میں ملوث تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن پیغام لے کر آئے، اے لوط، ان لوگوں کے پاس جاؤ جو انسانیت بھول چکے ہیں، جن کے دل پتھر بن چکے ہیں، جنہوں نے فطرت کو پلٹ دیا ہے، انہیں میری راہ دکھاؤ، شاید کوئی واپس لوٹ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ سفر آزمائش اور صبر کی کسوٹی بن گیا۔ وہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف روانہ ہوئے، جو دولت اور شرف میں تو مالدار تھے مگر اخلاقی اعتبار سے فقیر تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام شہر کی سرحد پر پہنچے تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ ہر طرف ظلم، بے حیائی اور خود غرضی کا راج تھا۔ یہ صرف گناہ کا شہر نہیں تھا بلکہ مردہ ضمیر کی ایک تصویر تھا۔ بستی میں مہمان نوازی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اگر کوئی مسافر غلطی سے وہاں پہنچتا تو اسے لوٹا مارا یا زندہ تلف کیا جاتا۔ سب سے برا جرم ان کا فطری رویہ تھا۔ مرد مردوں کی طرف مائل تھے اور بچے، بوڑھے، جوان سب بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وہ گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دن رات محبت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا، رویا، دعا کی، مگر کسی کے دل پر اثر نہ ہوا۔ جب نرمی کام نہ آئی تو ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے شہر کے بیچ میں کھڑے ہو کر پکارا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، تم نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جس پر آج تک کوئی نہیں چلا۔ اللہ کی طرف لوٹو ورنہ عذاب بہت قریب ہے۔ لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، ہنس کر کہا، اے لوط، تم بہت نیک بننا چاہتے ہو، پھر اس گناہ کے شہر میں کیوں آئے؟ یہ شہر ہمارا ہے، یہ دولت، یہ شان، یہ طاقت سب کچھ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تمہارا اللہ ہمیں کیا دے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام خاموش نہ ہوئے اور سالوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کبھی روتے، کبھی دعا کرتے، کبھی آہیں بھرتے، مگر لوگ مزید اندھیروں میں ڈوبتے گئے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب حق کی آواز نے ان کے کانوں کو چھوا۔ جو پہلے ہنستے تھے اب سازشیں کرنے لگے۔ شہر کے کچھ سردار رات کی تاریکی میں جمع ہوئے، ان کے چہروں پر بغض، آنکھوں میں نفرت اور باتوں میں سختی تھی۔ اگلے دن جیسے پورا شہر بیدار ہوا، حضرت لوط کے ایمان والوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جانے لگا۔
हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और कहा, आप लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ आएं। रास्ते में हजरत लूत ने कहा, ये शहर खतरनाक है, लोग बदकिरदार और जालम हैं, ऐसे गुनाहों में डूबे हुए हैं जो आज तक किसी कौम ने नहीं किए। फरिश्ते खामोश थे, जैसे सब कुछ जानते हों, मगर चेहरे पर सुकून और वकार था। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम फिक्रमंद हो गए कि इन मेहमानों की हिफाजत कैसे करें। आखिरकार वो घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए सुकून की सांस ली। उनकी बीवी भी सब देख रही थी। वो ज़ाहिरी तौर पर खामोश थी, मगर दिल से कौम के साथ माइल थी। हजरत लूत ने सख्ती से कहा, इन मेहमानों की बात किसी को ना बताना, खास तौर पर इस शहर के लोगों को। लेकिन उनकी बीवी दिल से माइल थी। चुपके से वो शहर में निकल गई और सरदारों के पास जा पहुंची। उन्होंने बताया कि 3 मेहमान आए हैं। उनका हसन इतना है कि सदविन की हर चीज उनके सामने फीकी लगती है। ये खबर सुनकर गुनाहगार मर्दों के दिलों में आग भड़क गई। कुछ ही देर में वो हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के दरवाजे पर जमा हो गए। जोर जोर से दरवाजा पीटा गया, नापाक आवाजें गूंज और शर्मनाक अल्फाज कहे गए, ए लूत, तुम हमारा नहीं हो, ये हसन नौजवान हमारे हवाले करो, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम का दिल नल थाम गया, आंखें नम हो गईं। उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, क्या तुम में एक भी शरीफ नहीं बचा? ये मेरे मेहमान हैं, मैं उन्हें तुम्हारी हवस का शिकार नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा, अगर निकाह करना है तो मेरी बेटियां मौजूद हैं, उनसे निकाह करो, ये अल्लाह का जायज रास्ता है, मगर मेहमानों को छोड़ दो। गुनाहगार लोग बोले, हमें तुम्हारी बेटियों में दिलचस्पी नहीं, हमें वो नौजवान चाहिए। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम बहुत मायूस हुए और दरवाजा बंद कर लिया। दिल भारी और आंखें नम थीं। इसी लम्हे एक मेहमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, घबराएं नहीं, अब की हिफाजत हमारे जिम्मा है। उन्होंने अपनी असल शनाख्त जाहिर की, हम जिब्राइल, मीकाईल हैं, अल्लाह के भेजे हुए अजीम फरिश्ते हैं, हम गुनाहगार बस्ती को तबाह करने आए हैं। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहि अस्सलाम से कहा, अब अपने ईमानदार साथियों के साथ फौरन शहर छोड़ दो, सुबह का सूरज बस्ती पर क़यामत बनकर तुलू होगा। फरिश्तों ने सख्ती से कहा, अपनी बीवी को पीछे छोड़ दो, क्योंकि वो नाफरमान कौम के साथ है। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की कि अंधेरे में अपनी बीवी, बच्चों और ईमानदार साथियों के साथ शहर छोड़ दिया। बीवी दिल से कौम के साथ माइल थी, मगर मजबूरना साथ गई। जब हजरत लूत अलैहि अस्सलाम शहर से निकल गए, जमीन पर खौफनाक चीखें गूंज, जमीन लरजने लगी, आसमान पर काली घटाएं छा गईं, रोशनी खत्म हो गई, हर तरफ अंधेरा फैल गया। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने अपनी नूरानी पर से बस्ती को आसमान की बुलंदी तक उठा लिया। शहर, लोग, जानवर, मकान, बाजार, सब कुछ हुआ में मुअल्लक हो गया। फिर जमीन पर धड़ाम से सब कुछ नीचे गिरा। कले, बाजार, मसाजिद, सब मिट्टी के ढेर में बदल गए। इसके बाद आसमान से पत्थरों और आग की बारिश हुई। हर पत्थर पर अल्लाह का नाम लिखा था और हर एक को उसकी सजा मिली। जो बचने की कोशिश करता वो भी मारा गया। रात के आखिर तक शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, कोई जिंदा नहीं बचा। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम और ईमानदार साथी पहाड़ों की वादियों से गुजरकर महफूज रहे। बीवी पीछे माइल थी और एक लम्हे में पत्थर में बदल गई। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम और उनके ईमानदार साथी पहाड़ों की वादियों में महफूज थे। वहां के रास्ते सख्त और खतरनाक थे, मगर अल्लाह की रहनुमाई से हर कदम महफूज रहा। बच्चों के दिलों में खौफ था, मगर वालिद के यकीन और दुआ ने सबको सुकून दिया। रात के अंधेरे में फरिश्ते हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के साथ मौजूद थे। जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहि अस्सलाम ने अपनी नूरानी पर से उन्हें हर खतरे से बचाया। हर लम्हे अल्लाह का करम महसूस होता रहा। मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। इसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। चेहरे पर फिक्र की लकीरें, आंखों में बेचैनी और दिल में एक अनजाना सा खौफ था। वो बार बार उधर उधर देखती, जैसे किसी अनजाने खतरे से भागना चाहती हो। आहिस्ता आहिस्ता वो उठी, सामान उठाया और चलने लगी। कदम डगमगा रहे थे, सांस फूल रही थी। फिर कुछ दूर जाकर वो थक कर बैठ गई। कांपती हुई आवाज में बोली, पता नहीं, अगर कभी इस आदमी से मेरा सामना हो गया और उसने मुझसे बात कर ली तो कहीं मेरा दिल भी ना बदल जाए। इसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था,
मोहम्मद, हाँ, जिसे एक बार सुन लो तो फिर भुलाना नामुमकिन हो जाए। बूढ़ी औरत के दिल में खौफ भी था और सवाल भी। वो कभी नबी करीम से मिली नहीं थी, मगर आपका नाम सुनकर ही उसकी रूह में हलचल मच गई। वो बढ़ाई, क्या ताकत है इस नाम में, जो मिल जाए तो जिंदगी बदल दे और जो ना भी मिले तो दिल की गहराइयों तक आ उतर जाए। इसी वक्त रसूल अकरम इसी रास्ते से गुजर रहे थे। अपने इस औरत को देखा, रुक गए। अपने महसूस किया कि ये औरत कहीं जाने की तैयारी में है, मगर बहुत कमजोर है और उसका सामान भी भारी है। अपने निहायत नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में फरमाया, अम्मा जान, कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत चौंक गई, कुछ देर तक आपको गौर से देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ अब रहना महफूज नहीं रहा। एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी ने सर झुकाया, खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे, फिर निहायत सुकून से फरमाया, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो बहुत भारी लग रहा है। बूढ़ी औरत कुछ लम्हे तक हैरान रह गई, दिल में सोचने लगी, कितना नेक और शफीक लड़का है। आजकल कौन किसी अजनबी की इतनी फिक्र करता है। फिर बोली, बेटा, अगर ताब मेरा सामान सर पर रखवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नबी मुस्कुराए, आगे बढ़े और वो भारी सामान अपने कांधे पर रख लिया। अपने नरमी से फरमाया, अम्मा जान, आप तो बूढ़ी हैं, ये बोझ अब से नहीं उठेगा। अगर इजाजत दे तो मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं। बूढ़ी औरत हैरान रह गई, बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। यूं नबी करीम ने इसका बोझ उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगे। रास्ता तवील था, बूढ़ी औरत हाँप रही थी, मगर बातें कर रही थी और वो बातें सब नबी के खिलाफ थीं। वो कहने लगी, बेटा, एक बात सुन ले, अगर तू समझदार है तो ये शहर छोड़ दे। यहाँ एक खतरनाक जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे माबूदों को झुठलाता है और लोगों को गुमराह करता है। नबी खामोशी से सुनते रहे, चेहरे पर सुकून, दिल में रहमत। वो औरत फिर बोली, कहते हैं इसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो इसी का हो जाए। मैंने सारी जिंदगी अपने बुतों की पूजा की है, मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में मेरा ईमान डगमगा जाए। मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ बेटा, इससे दूर रहना। पूरी रात वो औरत यही बात दोहराती रही। नबी खामोश रहे, किसी बात का जवाब ना दिया। आखिर मंजिल आ गई। नबी ने निहायत एहतियात से इसका सामान जमीन पर रखा ताकि कहीं इसे तकलीफ ना हो, फिर चुपचाप वापस मुड़ने लगे। बूढ़ी औरत चौंक गई, बोली, बेटा, एक बात तो बता, तो है कौन? इतनी मदद की, नाम तक नहीं बताया। मैं तो सबको कहूंगी आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला था। नबी मुस्कराया, नरमी से फरमाया, इमुआ है, नाम जान कर क्या करेंगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। मगर वो बजिद हो गई, नहीं बेटा, मैं जरूर जानना चाहती हूँ। तो इतना शरीफ, इतना नर्म दिल है, तेरा नाम जरूर बता दे। नबी खामोश रहे, फिर आहिस्ता से फरमाया, अम्मा, जिसे अब पूरे रास्ते बुरा भला कहती रहे, जिसे अपने जादूगर, झूठा, फरेब देने वाला कहा, मैं वही मोहम्मद हूँ। बूढ़ी औरत जैसे पत्थर की मूरत बन गई, इसके लब कपकपाने लगे, आंखें फैल गईं, गला खुश्क हो गया। बोली, तुम ही मोहम्मद हो? नबी ने सर झुका लिया, मुस्करा कर फरमाया, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। बूढ़ी औरत पर सख्ता तारी हो गया, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ी, नबी के कदमों पर गिर गई, वर रोते हुए कहने लगी, मैंने रास्ते भर आपको गालियां दें, आपका दिल दिखाया और आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे लिए बोझ अलिफाटे आलिफ, मेरी मदद की। क्या मुझे पहचान नहीं लेना चाहिए था? कि सच्चा इंसान ऐसा ही होता है। नबी ने निहायत नरमी से फरमाया, इमुआ है, आपने जो कहा वो आपकी लाइल्मी में कहा। जो नहीं जानता, अगर उसे सब्र और मोहब्बत से समझाया जाए तो एक दिन जरूर हक को पहचान लेता है। बूढ़ी औरत के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर भराई हुई आवाज में बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था, अब मैं समझ गई हूं कि तुम सच्चे हो, तुम अदल वाले हो, तुम यकीनन अल्लाह के भेजे हुए नबी हो। फिर इसने कांपती आवाज में मगर पूरे यकीन से कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यूं वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई।